विद्याशाला स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब बच्चों आप लोग? जैसे ही आपने वीडियो चालू किया होगा, आई होप कि आपने एक स्माइल जरूर करी होगी, बिकॉज स्माइल मेक्स यू लर्न better. So let's begin with a smile and start learning the class 9th lesson number 2, exercise 2.4 and question number 4, and which is the most important question throughout your mathematics and algebra is concerned. So keep it learning very thoroughly. Before you start the learning of the question 4, I request you to pause it the video for a moment and go through the question number 4 and question number 5. Let's find out the difference between a question number 4 and question number 5. Yes, just 1, 2, 3 and go and pause the video and start the reading question number 4 and question number 5. So keep on learning, keep on reading. Yes, great. So now the time is over. So let's understand the difference between a question number 4 and question number 5. So that is the difference is the degree term. Degree term having the coefficient of a 1 and the coefficient as a any numerical value. Got that? Got the difference? If you not, then again read the question number 4 and question number 5. Got it? Chalo, great. These are the basic some differences we should always remember. Correct? That whether the coefficient term is having a what? Degree term is having the coefficient as a 1 or non-1. Okay? That means non-1 means any positive integer. Correct? Or negative integer, what it will be except the 0 and 1. Chaliye. So that means maybe minus 1 so okay. Correct? So factorize. Let's begin with the factorize. That is part 1 says that 12x square minus 7x plus 1. Minus 7x plus 1. If you look at this problems, then you are finding out in the question number 4, we have some of the quadratic manner. And in the if we are listening and we are reading at the question number 5, then we find out that it is a cubical. So don't get confused, but I just wanted to make it learn that there is a coefficient terminology which is very important when we are doing the factorization. So 12x square minus 7x. So what we have to do? We have to multiply the coefficient of x square into coefficient of, we don't say the coefficient, we can say the constant term. Correct? That means 12 into 1 equals to 12. So now we have to find out the factors of the 12. That is 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, 4 into 3. That I got the reverse. So what I can do, that is a something, the stream. That means we have to stop it over and there is no further the factors of this 12 bars. So that means now learn this sign. That is sign is plus. Sign is plus. So what we have to do? We have to replace this 1 plus 12, 2 plus 6, 3 plus 4, 4 plus. There is no need of writing, so I am not writing it. So 3 plus 4. The sign of a constant term. Sign of constant term. जो भी साइन है कांस्टेंट टर्म का, उसको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस कर देना. सिंपल सी चीज याद रखें. मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस कर देना है, उसका आंसर लिखना है. That comes to 13, that comes to 8, that comes to 7. So it should be the equal to the middle term. Very good, student. That is the key. So that is what we have to multiply the step 1, step 2, and step 3. So 3 steps. 1, 2, 3, go. Sure. So coefficient of, got it? So before I begin, now this is how, before I begin, pause it and note it down. Great. So I hope you have noted down these things because it is very important. So now equal to the term that comes to the 7. Here I got the 7. Don't look at the minus or plus over here. Don't look at the minus and plus. Only you have to look at the constant. You don't have to look at this one. Only look at this. Chaliye.
हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट, लर्न इट बच्चों, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है लिखने का तरीका। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप बच्चे गलती करें। अभी आप सीख लो, अच्छी तरीके से सीख लो, अच्छी तरीके से देख लो कि टीचर आपको कैसे सिखा रहे हैं। देखो क्या करना है, 12x² लिखना है, लिखा, माइनस को माइनस की जगह पे रहने दो, माइनस को नहीं छेड़ना। आप क्या करना है, सिर्फ 7 को छेड़ना है। तो 7 को कैसे करना है, 3+4 में लिखना है। दैट मीन्स पहले आपको क्या लिखना है, बड़ा वाला, पहले क्या लिखना है, बड़ा नंबर, दैट इज 4 + 3, करेक्ट, x + 1। क्या सीखा बच्चों आपने, क्या सीखा, 7 को करा, मिडिल टर्म के कोफिशिएंट को ही सिर्फ आपने क्या किया है, आपने अरिथमेटिक फॉर्म ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लिखना है। यदि यहां पे एडिशन हुआ तो यहां पे क्या किया, एडिशन, बड़े को पहले लिखा, बड़े नंबर को पहले लिखा, छोटे नंबर को बाद में लिखा, ब्रैकेट में लिखना है, 7 को देखना है, माइनस को या प्लस को नहीं देखना, जो साइन है कोफिशिएंट का उसको नहीं देखना, मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के साइन को नहीं देखना, सिर्फ क्या देखना है, उसके कोफिशिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू को। न्यूमेरिकल वैल्यू को किस फॉर्म में लिखनी है, 3+4 या 4+3। तो पहले लिखेंगे बड़ा नंबर, पहले लिखेंगे बड़ा नंबर। याद कर लीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्या याद करना है कि बड़ा नंबर पहले लिखना है, साइन को नहीं देखना है। साइन तो पहले हमने यहां पे लगा दिया है, कौन सा साइन लगाया है, जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म का था। चलिए ग्रेट बच्चों, याद हो गया ना अच्छी तरीके से, दैट्स गुड। आप ब्रैकेट खोलेंगे बेटा, ब्रैकेट खोलने में अपने आप आंसर सही आएगा, डोंट वरी। आपने, यदि बच्चों ने मेरे से कई ना सवाल पूछते हैं बच्चे कि सर कि हम लोग पहले छोटा नंबर लिखते हैं, हमारे स्कूलों में बोला जाता है जैसे मर्जी लिख दो, नहीं, याद कर लीजिए बड़ा नंबर ही पहले लिखना है। क्या लिखना है, बड़ा नंबर। अभी तो प्लस है, चल जाएगा, माइनस होगा, क्या करोगे, बस दिमाग में वहीं पे हो सकता है आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए, इसलिए मिस्टेक की गुंजाइश 0। 100% एक्यूरेट क्वेश्चन सॉल्यूशन आप करने वाले हैं इस मेथड से। इन आप पेयर बना लिए, तो पेयर बन गया, तो कैसे हो गया, 4x कॉमन गया, 3x - 1, इन दोनों में से -1 कॉमन गया, 3x - 1, तो 3x - 1, 4x - 1, एंड दिस इज द आंसर। चलो नेक्स्ट, नोट इट डाउन, pause by pausing the video, learn it this 3 steps, and then we'll move to the next part. Note it down. So next part, student, here it is a 2x² + 7x + 3. What is the coefficient? 2 into 3 = 6. Now making the factor, 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2. Got it? So here it is a same. So we have to stop it there. Now we have to look at the sign of the constant. The sign of the constant is plus. That means that will replace by the plus. 1 + 6, 2 + 3, that is 7, that is 5. So what is the middle term? Coefficient, that is a 7. So that means 7, that is 2x². हम क्या लिखेंगे बच्चा लोग, पहले बड़ा नंबर, वेरी गुड, भूलना नहीं है ये बात। करेक्ट। सो बहुत इजी एक्सरसाइज, बहुत अच्छे ढंग से एक्सरसाइज कर लेनी है बच्चों ने। सो लेट्स, दिस इज हाउ, दिस ओनली यू हैव टू लर्न दिस 3 स्टेप्स। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करके पेयर बनाने हैं। करेक्ट। चल नेक्स्ट, पॉज इट दिस वीडियो, नोट इट डाउन, और अपने हिसाब से भी बाकी के दोनों क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। So next part is 6x² - 5x - 6. So here the 6 into 6 is the 36. So 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9, 5 की टेबल मिल जाता है, 6 की टेबल मिल जाता है, 6 into 6, 6 into 6. So हमारे यहां पे आ गए. So that's got to be the. Now, what is the sign? That is of the minus. अभी तक हमने दोनों क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए, प्लस के, अब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, माइनस के. So that means अब यहीं पे आ गए ना, अब आपको कंफ्यूजन रहेगा, सर यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, कि छोटा पहले कि बड़ा पहले. इसलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूं, यहाँ पे हमेशा बड़ा ही लिखना है. चलिए यहां पे आप कैसे भी लिखिए, फर्क नहीं पड़ता.
1 minus 36, 2 minus 18, 3 minus 12, 4 minus 9, 6 minus 6. आपको यहाँ पे सब वैल्यूज लिखनी है. क्या लिखनी है आपको? सिर्फ वैल्यूज. What are the values are coming? That comes to 35, that comes to 16, that comes to 9, that comes to 5 and that comes to 0. हमारे को कितना चाहिए? 5. तो 5 किससे आ गया? 4 minus 9 से. तो यहां पे क्या लिखेंगे भाई? सबसे पहले कौन सा लिखेंगे? बड़ा नंबर. अपने आप सॉल्व हो जाएगा. कई बच्चे बस यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि बच्चों को लगता है कि नहीं पहले सर 4 into 9 है तो चलो 4 minus 9 लिख देते हैं. नहीं, आपको क्या लिखना है? 9 minus 4. आपके माइनस के उसमें कभी गलती नहीं होगी. कैसा लगा बच्चों सॉल्यूशन? ये पॉइंट अच्छा लगा ना रिमेंबर करके? चलो ग्रेट. बस ये पॉइंट रिमेंबर, देन इट इज अ फतेह जीत ली, जंग जीत ली. बस मैथमेटिक्स में फैक्टराइजेशन आ गया. बहुत ग्रेट 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 बच्चों, गुड. चलो नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. पॉज इट, राइट, नोट इट डाउन. तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है? 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, दैट इज 3 into 4. मैंने यहां पे सब कुछ बिठा दिया ताकि आप लोगों को याद करें और जो आपके माइंड में है उससे आप उसको बिना रीड किए खुद अपने वो रूल्स को रिकॉल करें अपने माइंड में. तो 3 into 4 दैट कम्स टू 12. सो 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4 and 4 into 3. चलिए, so that means minus correct. ओके, सो यहां पे क्या लिखेंगे? पहले बिग वैल्यू, इजी लगा ना? कुछ रूल्स यदि हम लोग एक बार, ऐसा नहीं है कि आप छोटा या बड़ा नहीं रख सकते. पहले जो रूल कंफर्टेबल स्टूडेंट्स के लिए जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं वही रूल मैं समझता हूं कि आप लोगों के लिए रहेगा. हर तरीके के बच्चे होते हैं वीडियो देखने के लिए. सो जिनको लगता है मैथमेटिक्स में थोड़ा सा भी कहीं पे भी रूल्स याद करने से इजी हो जाती है तो उसके उन बच्चों के लिए काफी चीजें हेल्पफुल हो जाती है, सपोर्ट हो जाती है. उससे फिर उनके मार्क्स अच्छे आने लगते हैं. So this is 3x plus 2. So 4x, 3x square minus 4 minus 6x and plus 2x. चलिए, great. So this is the complete solution to the question number. Complete. तो इसमें आप अच्छी तरीके से देखेंगे. So कहीं जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा कोफिशिएंट जब भी हमारा डिग्री टर्म का होता है उसमें 1 है कि वो कोई और अदर 1 के अलावा कोई और अदर न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स. चलिए next we move to the question number 5. Note it down, pause the video and keep learning and keep smiling.